Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Hope you fine. Well, कल हमने जो डिस्कस किया था जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, उससे पहले हम साइको एक्टिव ड्रग्स को भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या है? फर्स्ट वी विल डिफाइन द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन अ वेरी सिंपल वे. Neurotransmitters basically are the molecules, chemical molecules, those responsible for transmitting information from one neuron to another neuron. They carry information from one neuron and transmit it to another neuron in chemical form. Neurotransmitters released from the terminal buttons jump the synaptic gap and attach to the binding sites. Neurotransmitters released from presynaptic neuron and reached at its final destination at postsynaptic neuron. It produced two types of effects: excitatory and inhibitory. EPSP, excitatory postsynaptic potential, and inhibitory IPSP, inhibitory postsynaptic potential. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, क्या खसूसियात क्या होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर? सबसे पहली खसूसियत जो होती है, किस चीज को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे? जब केमिकल that should be in chemical form and must be released from the terminal buttons of presynaptic neuron. अगर वो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से नहीं केमिकल आ रहा, अगर वो टर्मिनल बटन्स से नहीं रिलीज हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, वो कोई और चीज है. लेकिन when chemical secreted or released from the terminal buttons of presynaptic neuron and jump the synaptic gap and bind at the binding sites of postsynaptic neuron, that is called neurotransmitters. Neurotransmitters transmit information from presynaptic neuron to postsynaptic neuron as well. Well, we were discussing the characteristics of the neurotransmitter. So characteristics of neurotransmitter is neurotransmitter should be in the chemical form. Neurotransmitter, the chemical which released from the terminal buttons of the presynaptic neuron, jump the synaptic gap and must bind to the binding sites of the postsynaptic neuron, that will be called neurotransmitter. The second characteristics of neurotransmitter should be it transmit information from one neuron to another neuron. I mean, it transmit information from the presynaptic neuron to the postsynaptic neuron. That will be neurotransmitter. Third characteristics of the neurotransmitter will be it is substance that must be in chemical form. This is the third characteristic of neurotransmitters. What is the third characteristic? The substance which is in chemical form, that will be called neurotransmitter. And the final characteristic of neurotransmitter should be substance must draw effect on the postsynaptic neuron where it is going to bind. यानी ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे इसको डेफिनेटली अपना इफेक्ट छोड़ना चाहिए जहां पर जाकर ये बाइंड हो रहा है. इफेक्ट कौन सा छोड़ना चाहिए? जो मैं आपको पिछली स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्साइटेटरी इफेक्ट छोड़ेगा या इनहिबिटरी इफेक्ट छोड़ेगा. या तो ये एक्साइटेटरी इफेक्ट छोड़ेगा या इनहिबिटरी इफेक्ट छोड़ेगा. कहां पर? यहां पर, इस न्यूरॉन में. दिस इज प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ओके, एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. And these are basically terminal buttons, and these circular structures inside the terminal buttons. These are the sacs, and these are neurotransmitters. Those are going to jump from synaptic gap. This is synaptic gap, and these neurotransmitters try to jump the synaptic gap and try to bind on the
binding side of the postsynaptic neuron. This is postsynaptic neuron basically. So we discussed the characteristics definition of the of the neurotransmitters. Now we will discuss the different neurotransmitters. There are 5, 6, 7 major types of neurotransmitters are acetylcholine, glutamate, norepinephrine, dopamine, serotonin, gamma-aminobutyric acid, and endorphins. These are the 7 basic neurotransmitters we discussed one by one. First, acetylcholine. Acetylcholine is an excitatory neurotransmitter. यानी ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अगले न्यूरॉन को जाके एक्साइट करता है, उसको पॉजिटिव इफेक्ट ड्रॉ करता है। उस वहां से इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली ये इतनी जानदार इंफॉर्मेशन होती है कि अगले न्यूरॉन को जाके ये एक्टिवेट कर दे और वहां से इंफॉर्मेशन उससे अगले न्यूरॉन में चली जाए। अब ये किन चीजों में इन्वॉल्व होता है बेसिकली? इन लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन एंड जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इट create change in the functions like learning, memory, attention, and general intellectual functioning. Low level of acetylcholine lead to Alzheimer's disease. We will discuss it later on. What is Alzheimer's disease? And the excessive level of acetylcholine leads to severe muscle spasm. So this was the acetylcholine which mainly function in the areas of learning, memory, attention and general intellectual abilities. लो लेवल जो एसिटाइलकोलाइन का लो लेवल जो है वो अल्जाइमर डिजीज को प्रोड्यूस करेगा, उसको क्रिएट करेगा इन ह्यूमन बीइंग एंड और उसका जो एक्सेसिव लेवल है, जो ज्यादा लेवल है, नॉर्मल रूटीन से ज्यादा लेवल है, वो मसल स्पैम को इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एंड इट इन्वॉल्व इन लर्निंग, मेमोरी एंड मूवमेंट। जिस तरह हमने एसिटाइलकोलाइन की बात की थी, वो लर्निंग, मेमोरी और टेंशन एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डील कर रहा था, इसी तरह ग्लूटामेट जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी क्यों है, क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली जो स्लाइड है वहां पर बता चुका हूं। तो ये भी जो है ये लर्निंग, मेमोरी और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हाई लेवल है ग्लूटामेट का लीड टू एपिलेप्टिक सीजर, यानी एपिलेप्सी के जो दौरे होते हैं, जो मिर्गी के दौरे होते हैं, अगर ग्लूटामेट की मिकदार ब्रेन में ज्यादा हो जाए तो ये मिर्गी के दौरों का बायस बनती है। आगे जाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। दिस इज वेरी फेमस। अगर आपने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा हो और आपको याद हो तो आपको बखूबी याद होगा कि वहां पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत अमल दखल है। ये भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये फाइट और फ्लाइट के जो एक टाइम होता है, जो एक सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये उनमें अपना बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कैसे रोल प्ले करता है? जब भी आप की फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन होती है, यानी कि लड़ मरने की या भागने की, किसी भी थ्रेटनिंग, किसी भी जो एक खतरनाक एनवायरनमेंट सिचुएशन होती है, अगर आप वहां उसको डील करना चाहते हैं, उसका सामना करना चाहते हैं, तो दो ही आपके पास तरीके होते हैं। या आप फाइट करते हैं या आप वहां से करंट सिचुएशन से फ्लाइट करते हैं, यानी निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो दोनों सूरतों में आपके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। अब जब आपकी बॉडी, आपका ब्रेन किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन को, किसी भी डेंजरस सिचुएशन से कन्फ्रंट होता है तो वो क्या करता है? वो नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है और नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज होती है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इनहेंस कर देती है, हार्ट बीट को इनहेंस कर देती है, आपके ब्लड शुगर को इनहेंस कर देती है, ताकि आप किसी भी जो खतरनाक सिचुएशन है उससे आप नबर्द आजमा हो सकें, उसके साथ आप लड़ सकें, उसको डील कर सकें। नॉरएपिनेफ्रिन का जो लो लेवल है वो डिप्रेशन को लीड करता है। अगर किसी भी इंसान में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो लो हो जाए तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और अगर इसी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हाई हो जाए किसी में तो वो अल्टीमेटली एंजाइटी को लीड करता है। अब बात करते हैं डोपामीन। डोपामीन बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये अगले न्यूरॉन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव इफेक्ट ड्रॉ करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे।
ये किन चीज़ों में इन्वॉल्व है? टेंशन, लर्निंग एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। यानी डोपामिन जो है ये टेंशन को लीड करता है, इफेक्ट करता है, लर्निंग को इफेक्ट करता है, और इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है ये इनको कंट्रोल करता है। लो लेवल जो डोपामिन का है ये पार्किंसन डिजीज को कंट्रोल करता है। पार्किंसन डिजीज बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये डोपामिन का अगर लेवल जो नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, अगर वो डिसअपियर हो जाए तो डोपामीन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। प्रोड्यूस कम होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि डोपामीन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और कम किस लिए होता है? तो वो जो कॉज बनता है वो पार्किंसन डिजीज को इंट्रोड्यूस करवाने की कॉज बनता है। और अगर इसका लेवल हाई हो जाए तो ये स्किज़ोफ्रेनिया को इंट्रोड्यूस करवा देता है। आगे आ जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली इज आल्सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके मूड, इमोशनल स्टेट्स, हंगर, स्लीप और वेकफुलनेस स्टेट को लीड करता है। इसका लेवल अगर कम हो जाए, डोपामीन सॉरी सेरोटोनिन का लेवल कम लेवल जो है वो डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स को इंट्रोड्यूस करवा देता है। और अगर सेरोटोनिन का लेवल हाई हो जाए तो ये ऑटिज्म को पैदा करता है। आगे आ जाता है गामा अमाइनोब्यूटरिक एसिड यानी गाबा। दिस इज गाबा इज आल्सो एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इट रेगुलेट्स डेली स्लीप वेक साइकिल। लो लेवल ऑफ गाबा लीड्स टू इंसोम्निया, एंजाइटी, सीजर्स एंड ट्रेमर्स। यानी अगर गाबा का जो लेवल है, गामा अमाइनोब्यूटरिक एसिड का जो लेवल है ब्रेन में, वो लो हो जाए तो वो अल्टीमेटली इंसोम्निया यानी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने उसके फंक्शन में ऊपर बताया कि स्लीप वेक साइकिल को डील करता है। तो जब इसका लेवल लो हो जाता है तो ये इंसोम्निया क्रिएट करता है, उसके साथ साथ एंजाइटी को प्रोड्यूस करता है, सीजर और ट्रेमर्स को भी ट्रिगर करता है। एट द एंड एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स इज अ हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर। यानी ये एक हैप्पी जो कंडीशन है वो क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग में। दिस इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली ये पॉजिटिव इमोशंस को डील करता है, लीड करता है, और पेन परसेप्शन को डिक्रीज करता है। यानी पेन का, अगर आपकी बॉडी में पेन हो रही है और एंडोर्फिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो ये पेन को कंट्रोल करता है। और इसीलिए जब इसका लेवल लो होता है तो आपकी बॉडी जो है वो पेन को ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है। तो ये तो थे न्यूरोट्रांसमीटर्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसको। अगर इशू है तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड योर क्वेरीज एंड अदर थिंग्स।